إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير صدق الله العظيم ماشاءاللہ اللہم زد فزد اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اور ان کی آواز میں بے حد برکت عطا فرمائیں۔ اب اس کے بعد اپنی مجلس کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے اور آپ کے درمیان حضرت قاری اسامہ صاحب آنندی تشریف فرما ہے اور ان کی مجلس کی شان ہوتی ہے کہ جب بھی وہ مجلس کا افتتاح کرتے ہیں تو شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت مبارک کے کچھ اشعار پیش کرتے ہی ہیں۔ جب بھی ان کے بیانات ہم سنتے ہیں تو مدحت رسول تو سننے کو ملتے ہی ہیں، اول میں بھی اور آخر میں بھی۔ تو حضرت اپنے معمول کے مطابق اس مجلس کا آغاز کریں گے اور اس کے بعد جب حضرت کا بیان ہو جائے گا اس کے بعد حضرت 10 منٹ 15 منٹ دعا فرمائیں گے تاکہ خاص کر موجودہ زمانے میں آج کی جو مجلس رکھی گئی ہے اس نیت سے رکھی گئی ہے کہ بھئی مسجد جو ہم نے بنا دی اللہ تعالیٰ نظر بد سے محفوظ رکھے۔ بس آپ لوگ حضرت کی دعا پر آمین کہتے رہیے اور جو حضرت کے ارشادات ہوں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کیجئے اور مل کر بیٹھنے کی کوشش کریں۔ اور میں حضرت قاری اسامہ صاحب آنندی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنے ملفوظات سے سامعین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ لگ رہا ہے چاروں طرف سے باندھ دیا۔ السلام علیکم، جواب دے دیں ایک دفعہ، تھوڑا بڑھاؤ اس کو، مائک کو بڑھاؤ، تھوڑا آواز بڑھاؤ۔ مدینہ جائیں گے انشاءاللہ، اللہ مدینے لے جائے، مدینے والی موت دے، بولو ایک دفعہ آمین زور سے۔ سمجھ آئے تو آمین ضرور کہنا،
رحمتوں کی ٹھنڈک ہے اس قدر مدینے میں، رحمتوں کی ٹھنڈک ہے اس قدر مدینے میں، رحمتوں کی ٹھنڈک ہے اس قدر مدینے میں، اس قدر مدینے میں، شام جیسی لگتی ہے دوپہر مدینے میں، شام جیسی لگتی ہے دوپہر مدینے میں۔ بہت خوبصورت، آپ کی روح کو ٹھنڈ پڑے گی۔ کاش ایسا جینا ہو، کاش ایسا مرنا ہو، کاش ایسا جینا ہو، کاش ایسا مرنا ہو، کاش ایسا جینا ہو، کاش ایسا مرنا ہو، کاش ایسا مرنا ہو، ہر گھڑی نگاہوں کے سامنے مدینہ ہو، ہر گھڑی نگاہوں کے سامنے مدینہ ہو۔ آگے والا شعر، ہم سب چلتے ساتھ مدینہ، ہم گنہگاروں کو اور کون پوچھے گا، ہم گنہگاروں کو اور کون پوچھے گا، ہم گنہگاروں کو اور کون پوچھے گا، اور کون پوچھے گا، آئیے چلا جائے ان کے در مدینے میں، آئیے چلا جائے ان کے در مدینے میں، ان کا گنبد خضرا اس طرح چمکتا ہے، ان کا گنبد خضرا اس طرح چمکتا ہے، اس طرح چمکتا ہے جس طرح انگوٹھی کے بیچ میں نگینہ ہو، جس طرح انگوٹھی کے بیچ میں نگینہ ہو۔ آخری شعر مولانا ساجد سے سمجھ چاہوں گا، آخری شعر پڑھتا ہوں، بہت خوبصورت، ایڈوانس ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دو۔ بس ساجد کے دل کی ایک ہی تمنا ہے، بس ساجد کے دل کی ایک ہی تمنا ہے، ایک ہی تمنا ہے، عمر بھر رہے آقا
करने आ दर मदीने में। ज़ाहिर भाई सोच रहे वो कबूल हो गए हमारे, हम सब चले न जाए। अल्हम्दुलिल्लाह व कफा व सलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नस सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर व क़ाला नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अस्सलातु इमादुद्दीन व क़ाला नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अस्सलातु मिअराजुल मुमिनीन। सबसे पहले नियत करें इंशाअल्लाह इस मस्जिद का हक अदा करेंगे। बोले इंशाअल्लाह। इलाही मुसलमानों पर रहमत की नजर कर दे, बोलो आमीन। इलाही मुसलमानों पर रहमत की नजर कर दे, हमारी इल्तिजाओं में पैदा जरा असर कर दे। नमाज़े तरक करके हुए तेरी याद से गाफिल, नमाज़े तरक करके हुए तेरी याद से गाफिल, हमें तो नाम अहमद से जरा बाखबर कर दे। किसी को नाज होगा पारसाई का, इबादत का, रियासत का, किसी को नाज होगा पारसाई का, इबादत का, रियासत का, हमें तो एक भरोसा है मोहम्मद अरबी की शफाअत का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं सबसे पहले इस मस्जिद के ट्रस्ट हजरात, मुतवल्ली हजरात और तमाम मुसल्ली पूरी दमन बस्ती वालों को मुबारकबादी पेश करता हूँ। बड़ी खूबसूरत मस्जिद का रिनोवेशन किया। अल्लाह ताला मुझे और आपको, हमारी नस्लों को इस मस्जिद का हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। सबसे पहला हक मस्जिद में बोले इंशाअल्लाह दुनिया की बात नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। दूसरा हक इस मस्जिद को सजदों से आबाद करेंगे इंशाअल्लाह। और तीसरा हक कोई भी बंदा हो, मुअज्जिन नहीं, मुअज्जिन का तो काम ही होता है, कोई भी बंदा हो मस्जिद में कहीं तिनका कचरा कहीं भी पड़ा हुआ देख ले तो इंशाअल्लाह उठाकर अपनी जेब में रख लेंगे। बोले इंशाअल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया एक घास का तिनका मस्जिद से उठा लिया, मोटी आंखों वाले बूढ़ों का हक के महर है। मस्जिद की सफाई करते करते जो गर्द गुबार चेहरे पे उड़ता है, मेरे नबी ने फरमाया इस चेहरे पर दोज़ख की आग हराम हो जाती है। हमने तो समझ रखा है ये वजीफा मुअज्जिन साहब का है, 3500 देते हैं ना, सारा काम इन्हीं को करना है। तो मुअज्जिन का काम नहीं, सबका काम है। कहाँ कहीं भी कोई कचरा पड़ा हुआ देख ले तो हम उठा लेंगे। बोले इंशाअल्लाह। और अब अल्लाह का घर है, हम अपने घर को कितना साफ रखते, कहते हैं कि बेटा इधर आइए उठा ले, खुद बाप उठा लेता है, माँ उठा लेती है। तो हम अल्लाह के घर को इस तरह नहीं रख सकते। क़यामत के दिन इसका फिर पूछा जाएगा तो इसका जवाब देना भारी पड़ जाएगा। मेरे अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने मुझे और आपको इंसान बनाया। क्या बनाया? 18,000 मखलूकात अल्लाह ने दुनिया में पैदा फरमाई। कितनी मखलूक ऐसी है जहाँ तक इंसान की राह तक रसाई नहीं हुई। समंदरों के अंदर देखो तह में कितनी मखलूक अल्लाह ने बनाई। 18,000 मखलूकात में से अल्लाह ने सबसे अशरफ मुकर्रम अगर कोई मखलूक बनाई तो वो हजरत इंसान। रब का शुक्र है अल्लाह ने मुझे और आपको क्या बनाया? बोलो इंसान। खलक़हु मिन तुराबिन सुम्मा क़ाला लहू कुन फयकून। अल्लाह फरमाता है मैंने आदम को मिट्टी से पैदा किया। अल्लाह फरमाता है सारी कायनात मैंने कुन कहकर बनाई। इज़ा क़ज़ा अम्रन फइन्नमा यक़ूलु लहू कुन फयकून। जब मैं किसी काम को करने का इरादा करता हूँ कहता हूँ हो जा, वो हो जाया करती है। अल्लाह फरमाता है चांद कुन कहकर बनाया, सूरज कुन कहकर बनाया, दरिया कुन कहकर बनाए, समुंदर कुन कहकर बनाए, दरख्त कुन कहकर बनाए, सारी कायनात कुन कहकर बनाई। लेकिन ओ मेरे बंदे जब तेरी बनाने की बारी आई मैंने तुझे चांद के साथ नहीं मिलाया, सूरज के साथ नहीं मिलाया, दरिया और समंदर और पहाड़ों दरख्तों के साथ नहीं मिलाया। लिमा खलक़तु बियदैया। तेरा अब्बा भी सोया करता था, तेरी अम्मी भी सोई हुई थी। मुझे मेरी किबरियाई की कसम, मैं तुझे अपने हाथों से अपनी कुदरत से बनाया करता था। सारी कायनात अल्लाह ने कुन कहकर बनाई और मुझे और आपको अल्लाह ने अपनी कुदरत से अपनी ताकत से बनाया। अब अल्लाह हमसे क्या चाहता है? 5 वक्त की नमाज ही चाहता है। 24 घंटे में थोड़ा कुरान पढ़ लो, नमाज पढ़ लो। हम अपने लिए कितना कुछ करते, जिम करेंगे अपनी सेहत के लिए,
अच्छा लिबास पहनेंगे अपनी तारीफ के लिए, अच्छा खुराक खाएंगे अपनी तंदुरुस्ती के लिए, अच्छा पानी पिएंगे, फिल्टर पानी पिएंगे, कहीं घुटनों में दर्द न हो जाए, कहीं कैल्शियम खत्म न हो जाए। कितनी केयर करते अपने बदन की। बदन बनाया किसने? बोलो। अब अल्लाह के लिए भी कुछ करना है। 2 रकात नहीं पढ़नी जुमा में, 14 पढ़नी। 2 रकात के बाद गेट पे कितनी भीड़ होती है, दूसरों के जूते उठा के निकल जाते हैं। कितने आते हैं जुमा को मस्जिदों में आते हैं। मस्जिद तो बना दी शब गर्मी ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना काफी था बरसों में नमाजी न बन सके। 5 वक्त की नमाज न हो कौन सा मुसलमान? थोड़ा टाइम 24 घंटे में तिलावत कुरान के लिए न हो कौन सा मुसलमान है? इस कुरान के लिए हमारे नबी ने कितनी तकलीफें उठाई। शुक्र करो अल्लाह ने कुरान की दौलत मुझे और आपको अता फरमाई, इंसान बनाया और मुसलमान के घर में पैदा फरमाया। दुनिया का सबसे बड़ा अमीर वो है, बोलो बेशक, जिसके सीने में ईमान हो। दुनिया का सबसे बड़ा गरीब वो है जिसका सीना ईमान से खाली हो। हमें ईमान की कदर नहीं है। रमजान का महीना आएगा, सालों से वही रस्म चलती है मौलाना। सुबह शुरू के 2-3 सूरतों में तो पूरी मस्जिद भरी हुई होती, बीच में पूरा हिस्सा खाली, 1 से 1.5 से, फिर सीधे आएंगे 27, अंदर बाहर ऊपर खचाखच मस्जिद भरी हुई। फालूदा पीना है, फालूदा पूरे महीने का फालूदा बना दिया। अब रमजान में आएंगे 27 को। ये मस्जिद सिर्फ 27वें रमजान के लिए बनाई है, एग्जाम बना हुआ है। खैरुल अमाकिन मेरे नबी ने फरमाया, मिशकात में है, सबसे बेहतरीन जगह अगर धरती पर है तो वो अल्लाह की मसाजिद है। और शर्रुल अमाकिन, बदतरीन जगह अगर धरती पर है तो वो बाजार है। हमें तो कुरान नहीं सुनना अच्छा लगता है, 1 घंटा नहीं बैठते मस्जिद में, बैठे रहते बाहर सहन में, मोबाइल खेलते रहते। रुकू में जाएंगे इमाम साहब दौड़ लगाएंगे। इस रमजान में पूरा महीना ये मस्जिद भरी हुई होनी चाहिए, बोले इंशाअल्लाह। और तुम जहां कहीं से आए हो इकरा जवानी से, जहां करीब में तुम्हें मस्जिद अपनी लगती हो, उस मस्जिद में जाके पूरा महीना पाबंदी के साथ कुरान सुनो, खुद कुरान पढ़ो, खुद कुरान सुनो। गुज़िश्ता रमजान में आप लोगों के मुशाहदे में है कितने लोग जिंदा थे, आज कब्रों में सो रहे हैं। पता नहीं ये रमजान मेरा तुम्हारा आखिरी रमजान भी तो हो सकता है। मिशकात शरीफ में मेरे नबी ने सहाबी से फरमाया, हर नमाज को आखिरी नमाज समझकर पढ़ो। मुझे पता है मुझे कितना जीना है नहीं पता, आप लोगों को पता है कितना जीना है नहीं। अरे चलते चलते लोगों की सांसें निकल जाती है। अल्लाह सजदे वाली मौत दे, ऐसी मौत मांगना है, अल्लाह मदीने वाली मौत दे। 5 चीजों का इल्म अल्लाह के अलावा किसी को नहीं है। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस साअ व युनज़्ज़िलुल गैथ व यअलमु मा फिल अरहम व मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा व मा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत। कयामत कब आएगी, बारिश कहाँ कितनी बरसेगी, माँ के पेट में क्या है, कल आप क्या कमाएंगे, कहाँ मरेंगे, कोई नहीं जानता। कौन जानता है? सिर्फ अल्लाह जानता है। बोलो आमीन। अल्लाह सजदे वाली मौत नसीब फरमाए। इसलिए नौजवानों से बिलखुसूस कहूंगा, रमजान की कदर करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। बहुत खुशियों का मौका मेरा तुम्हारे पास आ रहा है। अनकरीब हम माह सियाम में दाखिल होने जा रहे हैं। मोमिनो खुशियां मनाओ, माह रमजान आ गया, अपने अपने दिल सजाओ, माह रमजान आ गया। मोमिनो खुशियां मनाओ, माह रमजान आ गया, अपने अपने दिल सजाओ, माह रमजान आ गया। रहमते यज़दा तुम्हारे पीछे पीछे लगी, रहमते यज़दा तुम्हारे पीछे पीछे लगी। सर को सजदे में गिराओ, माह रमजान आ गया, सर को सजदे में गिराओ, माह रमजान आ गया। जकरा जाता है इन्हीं अय्याम में इब्लीस को, जकरा जाता है इन्हीं अय्याम में इब्लीस को। दिल इबादत में लगाओ, माह रमजान आ गया, दिल इबादत में लगाओ, माह रमजान आ गया। माह रमजान और कुरान का बड़ा ही साथ है, माह रमजान और
खुद पढ़ो सबको पढ़ाओ, माह रमजान आ गया। खुद पढ़ो सबको पढ़ाओ, माह रमजान आ गया। दिन को रोजा रात को तरावी की पढ़ कर नमाज, दिन को रोजा रात को तरावी की पढ़ कर नमाज। अपनी किस्मत को जगाओ, माह रमजान आ गया। अपनी किस्मत को जगाओ, माह रमजान आ गया। एक तरावी बोल इंशाल्लाह, एक तरावी नागा नहीं होने देंगे, पाबंदी के साथ पूरा कुरान सुनना है। और मैं आप सबसे कहूंगा, अगर किसी के घर में 10 अफराद और हर फर्द औरतों को भी शामिल कर लो, रोजाना 3 पारों की तिलावत करे, तुम्हारे इसी घर से रोजाना एक कुरान खत्म होगा। महीना खत्म हुआ, ईद का चांद नजर आया, तुम घर वालों के दामन में 30 कुरान होंगे। मैं कहता हूँ इधर उधर जाने की जरूरत नहीं होगी, अल्लाह पूरा साल रहमतों की बारिश तुम्हारे मकान में बरसाए। यहाँ जितने बैठे हैं कोई ना कोई किसी परेशानी में है, मैं भी हूँ, गलत कहते सब परेशानी में। कोई नौकरी के लिए परेशान है, कोई नौकरी से परेशान है, कोई बीवी के लिए परेशान है, तो कोई बीवी, वो मैं भी, उसमें क्या है, कोई ना कोई किसी न किसी उलझन में बैठा हुआ है। कोई जॉब के लिए परेशान है, कोई जॉब से परेशान है, किसी की दुकान नहीं चलती, किसी को घुटनों में दर्द है, कोई बीमारी है। सब परेशानियों का मेरे रब ने हल बताया। मुसल्ला बिछाओ, कुरान पढ़ो, आंसू बहाओ, अल्लाह तुम्हारे घरों में रहमतों की बारिश बरसाएगा। सबसे पहले ये नियत करनी है, गुज़िश्ता रमजान के मुकाबले में इस रमजान में डिफरेंस होना चाहिए, आगे बढ़ना है, बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि मैं और आप अपनी कब्र से करीब हो रहे, जितना ये इतना फास्ट जमाना गुजरता है, पता ही नहीं चलता, रमजान से रमजान आ जाता है। ये रमजान आया, ऐसा लग रहा है जैसे 2-3 दिन पहले ही हमने ईद मनाई हो। इतना फास्ट जमाना गुजरता है, पता ही नहीं चलता। इस मजमे में कोई 40, कोई 45, कोई 50, कोई 55 का है, ऐसा लग रहा है जैसे अभी बचपन में बारिश में नहा रहे थे। इतना फास्ट जमाना गुजर रहा है। अरे मैं कहता हूँ ऐसे ही निकल जाएंगे, मस्जिद में मेरा तुम्हारा ऐलान भी हो जाएगा, कफन भी उड़ा देंगे, कंधों पे उठा के कब्रिस्तान में पैबंदे खाक भी कर देंगे, दफन करके रिश्तेदार अपने अपने काम में भी लग जाएंगे। तख्तों के नीचे न मेरा तुम्हारा सेलफोन, न बीवी, न बच्चे, न माँ, न बाप, न जिगरी दोस्त, न गहरा दोस्त, न दुकान, न मकान, न फ्लैट, न प्रॉपर्टी, न जायदाद, न गाड़ी, कुछ नहीं। अगर अच्छा अमल तख्तों के नीचे अगर मेरे तुम्हारे साथ अगर कुछ है, तो वो एक हाथ में नबी का फरमान होगा, एक हाथ में अल्लाह का कुरान होगा। फिर फरिश्ते नहीं पूछेंगे तेरा रब कौन है, देख लेंगे ना ये तो मुस्तफा का गुलाम बन के आया, अल्लाह सीधा जन्नत का मुसाफिर बना है। जिंदगी ऐसे गुजारनी, नमाजी बन के मरना है, बेनमाजी बन के नहीं मरना। इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। देखो कितने गुनाह हो रहे, गुनाहों से बचने का एक जगह अल्लाह ने बताई, मस्जिद। मस्जिद में गुनाह नहीं होंगे इंशाअल्लाह, बाहर निकलेंगे आंखों का जीना होगा। बाजार देखो फितनों से भरा हुआ है। ऐसा दौर में हमें और आप जी रहे, अपना ईमान बचाना बड़ा मुश्किल अमर है। हमारे अकाबिर कैसे हुआ करते थे? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने वसीयतनामा लिखा था कि मेरी नमाज जनाजा हर कोई नहीं पढ़ा सकता, मेरी नमाज जनाजा वो आदमी पढ़ाएगा जिसके अंदर 4 बातें पाई जाए। कितनी? ऊंची बोलो। 4 बातें जिसके अंदर हो वही मेरी नमाज जनाजा पढ़ाए। पहली शर्त लिखी, मेरी नमाज जनाजा वो आदमी पढ़ाए बालिग होने से मेरे जनाजे के वक्त तक कभी भी किसी भी हाल में भी तकबीर उला फौत न हुई हो। अब कहां से लाए ऐसे तकबीर उला कज़ा न हुई। दूसरी शर्त लिखी, मेरी नमाज जनाजा वो आदमी पढ़ाए बालिग होने से मेरे जनाजे के वक्त तक कभी भी किसी भी हाल में भी असर की सुन्नत न छूटी हो। तीसरी शर्त लिखी, मेरी नमाज जनाजा वो आदमी पढ़ाए बालिग होने से मेरे जनाजे के वक्त तक कभी भी किसी भी हाल में भी तहज्जुद की नमाज कज़ा न हुई हो। चौथी शर्त लिखी, मेरी नमाज जनाजा वो आदमी पढ़ाए बालिग होने से मेरे जनाजे के वक्त तक कभी भी किसी भी हाल में भी अजनबी लड़की पे नजर न पड़ी हो। असर की सुन्नत न छूटे। तवज्जुद मिशकात में मेरे नबी का फरमान है, जो बंदा पाबंदी के साथ तवज्जुद पढ़ता है क़यामत के दिन अल्लाह उसका हिसाब न लेगा, बगैर हिसाब किताब के जन्नत देगा। मैं हवाला देता हूँ, मिशकात में रिवायत है, बोलो आमीन, अल्लाह मुझे और आपको तवज्जुद पढ़ने वाला बनाए। और चौथी शर्त,
अजनबी लड़की पे नजर न पड़ी हो। अब कहाँ से लाए ऐसा माहौल? हमारा जिना कितना चलता है, रोजाना लड़कियां भागती है, रोजाना खबरें आती। इंटरनेट जब से फ्री पैकेज पड़ा है ना, ये इंटरनेट मीडिया का सिस्टम तरक्की पकड़ा है, मुआशरा जहन्नम बना हुआ है। मस्जिदों में दिल ही नहीं लगता, कब नमाज खत्म हो मोबाइल निकाल के चैटिंग शुरू कर दो। कितनों का मोबाइल घर पे होता है ना चार्जिंग में, तो भी फिर जब पेट्रोल से के अपडेट तो नहीं हो रहा। बस अड्डे पर, रेलवे स्टेशन पर अगर कोई चेहरा उतरा हुआ तुम्हें दिख जाए तो पूछना नहीं तबियत ठीक, समझ जो चार्जर जल भूल के आया है। इतना मोबाइल के बगैर रहना मुश्किल हो गया। हमारे बच्चों का हाल बताऊं, 4 साल की बच्ची, 4.5 5 साल की बच्ची, घरों में ही देख लो, जब तक उसको शॉर्ट वीडियो ना दिखाई जाए वहां तक वो खाना नहीं खाते। हलक के नीचे लुकमा जाता ही नहीं। एक तरफ शॉर्ट वीडियो देख रही, दूसरी तरफ मां निवाले दे रही है, लुकमे नीचे जा रहे हैं। मोबाइल का खाने से इतना जोड़ बना दिया, अपने मासूम 5 6 साल के बच्चे मोबाइल के बगैर खाना नहीं खाते। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार जैसा वली तो मिलेगा या मिल जाए, ऐसी शर्तें भी लिखे ना, मैं कहता हूँ कयामत तक जनाजा पड़ा रहेगा, पढ़ाने वाला कोई मिलेगा ही नहीं। 4 शर्तें जिसके अंदर पाई जाए वही जनाजा पढ़ाए, ये दूसरा कोई ना आए। अब शाम तक बारी थोड़ी थोड़ी देर में वसीयतनामा पढ़ा जा रहा है, किसी के अंदर 2 है 2 नहीं, 3 है 1 नहीं, 1 है 3 नहीं, कोई ऐसा नहीं कहा जो चारों शर्तों में कामिल हो। जब शाम का वक्त हुआ, एक नौजवान मजमे को चीरता हुआ आया। मौलाना मनाजिर हसन गिलानी ने लिखा है कि इतना बड़ा मजमा था, 20,000 मुहद्दिस थे, 50,000 उलमा थे, 80,000 नाज़रा कुरान पढ़ने वाले थे, 1 लाख हाफिज थे, और सहारनपुर, संभल, मेरठ, देवबंद, जगह जगह से लोग आए थे। थोड़ी थोड़ी देर में वसीयतनामा पढ़ा जा रहा है, लेकिन कोई आगे नहीं आता, किसी के अंदर ये चारों बातें नहीं थी। शाम का वक्त एक नौजवान आ गया, वो मजमे को चीरता हुआ कफन की चादर हटाई, गरम गरम आंसू टप के कहने लगा, ख्वाजा मैं जानता हूँ तो किसे कह के गया है, मैंने बड़ी मख्फी जिंदगी गुजारी, मेरा राज सिर्फ मेरा अल्लाह मेरा ख्वाजा जानता था, लेकिन मुझे डर इस बात का है, अब तक चारों बातें मौजूद है, आगे पता नहीं क्या होगा, अगर इसके खिलाफ हो गया काली कमली वाले को क्या मुंह दिखाऊंगा। फिर कहा, लोगों सफे बनाओ, अल्हम्दुलिल्लाह ये चारों बातें मेरे अंदर मौजूद है। अमन वालों यकीन करो, वो किसी मदरसे का शेखुल हदीस नहीं था, किसी इलाके का पीर नहीं था, किसी मस्जिद का इमाम नहीं था, उस जमाने में हिंदुस्तान के तख्त पर बैठकर हुक्मरानी करने वाला ख्वाजा शमसुद्दीन अल्तमस था, बादशाह है। अभी तकबीर उला कज़ा नहीं हुई, तहज्जुद नहीं छूटी, असर की सुन्नत नहीं छूटी, हम जुमा मस्जिदों में आते हैं। मस्जिदें तो बहुत बन रही है, आबाद करने वाले नहीं रहे, इसलिए मुसलमानों मस्जिद बनाई है तो इसका हक है कि हम इसको आबाद करने वाले बनेंगे। बोले इंशाअल्लाह। मस्जिद में बैठना, एतिकाफ में भी गुज़िश्ता रमजान के मुकाबले में इस रमजान में ज्यादा को बैठना है। हालात बहुत खराब है, मुआतकिफीन की दुआ अल्लाह जल्दी कबूल करता है। एतिकाफ में बैठो, दुआएं करो, हालात चारों तरफ बहुत कशीदा है, हालात बताने की जरूरत नहीं, सब जानते हैं दुनिया में क्या चल रहा है। मैं कहता हूँ रब मेरे हाल की तरफ देख, आवाज आती है बंदा अपने नाम अमल की तरफ देख, मत कर शिकवा मशीयत का, खुदा जालिम नहीं, जालिम में मेरी तुम्हारी अपनी बदअमालियां। हमारा अमल सुधर गया इंशाअल्लाह अल्लाह हालात को दुरुस्त कर देगा। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इस कमेटी वाले, ट्रस्ट हजरात और इस मस्जिद को रोशन बनाने में जिन जिन लोगों ने दामे दीरा में, कदम में, सुखने जिस लाइन का हिस्सा लगाया, अल्लाह इनकी नस्लों में दीन की दाई शदाई पैदा फरमाए। और जो कुछ भी काम, तो मुझे लग रहा है मुझे जल्दी बुला लिया है, बहुत कुछ काम बाकी है मौलाना साहब, है ऐसा लग रहा है दोबारा भी बुलाएंगे। अभी तो घड़ी भी नहीं लगी, घड़ी कहाँ है? मैं देख रहा हूँ चारों तरफ घड़ी नहीं, अभी तो बहुत कुछ काम बाकी है अल्ताफ भाई, तो आप नियत करके इंशाल्लाह अपना हिस्सा लगाएंगे। बोले इंशाल्लाह। घोंसले, परिंदे के घोंसले के बराबर अगर किसी ने मस्जिद में हिस्सा लगा लिया, मेरा रब, मेरे नबी ने फरमाया, मिशकात में मौजूद है, हम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, परिंदे के घोंसले के बराबर पूरी मस्जिद ने इतना हिस्सा लगा दिया, अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन जन्नत में आलीशान महल बना करके देगा। जन्नत में जाना है? बोलो, इनका ऐसा है कि हाँ कहेंगे इंशाल्लाह कभी मर न जाए। अरे वो तो वक्त में मरेंगे, किन किन को जाना है जरा बता दो, जन्नत में किन किन को जाना है? माशाल्लाह देखो,
अल्लाह इंशाल्लाह बोलो जन्नत में हम सबको ले जाएंगे और इसी तरह हम सबको जमा फरमाएगा अल्लाह इंशाल्लाह। पारा नंबर 26 सूरह मोहम्मद, मतलुल जन्नतिल्लती वइदल मुत्तक़ून फीहा अनहारुम मिन माइन गैरि आसिन व अनहारुम मिन लबनिन लम यतगय्यर तअमुहु व अनहारुम मिन खम्रिन लज़्ज़तिन लिश्शारिबीन व अनहारुम मिन असलिन मुसफ़्फ़ा। चार नहरें, कितनी? चार नहरें अल्लाह मुझे और आपको जन्नत में अता फरमाएगा। हाँ, नमाज पढ़ के मरना है तो देगा अल्लाह जन्नत, है ना इंशाल्लाह। पहली नहर अल्लाह अता फरमाएगा दूध की, दूसरी शहद की नहर और तीसरी शराब की नहर। बहुत सारे नौजवान शराब पीते हैं, अब तो मेडिकल की बोतलें आती हैं उसमें नशा करते हैं। अरे क्या हाल बना के रखा है, 16 15 15 14 साल के जब हम नाबालिग हैं लेकिन वो नशा करते हैं। अरे नशा यहाँ ना कर मेरे भाई, यहाँ नशा करेगा अल्लाह तुझे जन्नत की शराब से महरूम कर देगा। दुनिया की शराब में क्या है, एक तो हराम गुनाह कबीरा और फिर सर में दर्द, सामने पता ही नहीं होता ऐसा डामाडोल है उसका वजूद, बीवी खड़ी है बहन खड़ी है पता ही नहीं होता। जब नशा उतरता है तब पता चलता है कि कहाँ पड़ा हुआ हूँ। ये नशा ना करो, नशा करोगे। अभी मैं किसी इलाके में गया था, नाम नहीं लेता था, मौलाना यहाँ तो लोग मेडिकल की बोतलों में नशा करते हैं। मैं कहता हूँ यहाँ नशा किया अल्लाह जन्नत के नशे से महरूम। जन्नत में अल्लाह शराब खुद पिलाएगा, वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा। अल्लाह मेरा रब खुद अपने हाथों से पिलाएगा, मेरे नबी से पिलवाएगा, अल्लाह फरिश्तों से पिलवाएगा। तो हमें ये पीना है वो पीना है, बोलो। वहां की हर घोट में अल्लाह एक अलग लज्जत देगा। न किसी किस्म की जन्नत में बीमारी, न कोरोना, न टाइफाइड, न मलेरिया, न घुटनों में दर्द, न कमर में दर्द, न पाखाना न पेशाब। साहबी ने पूछा पाखाना नहीं तो खाना कहाँ जाएगा? मिशकात में मेरे नबी ने फरमाया एक डकार लेगा सारा खाना हजम। हम तो डकार लेते पता चल जाता है कौन सा मटन खा के आया, हमारी डकार में बदबू फूटती है। जन्नत एक डकार लेगा सारा खाना हजम। मेरे नबी ने फरमाया डकार में बदबू न होगी, उसकी डकार से मुश्क की खुशबू फूटेगी। अब ऐसी खूबसूरत जन्नत अल्लाह देगा, जुमा पढ़ने पर दे देगा, तो जन्नत देगा भी अल्लाह अपने फजल से देगा। लेकिन हमें कुछ तसल्ली तो होनी चाहिए कि हम कुछ करके मरे, इसलिए हमें नमाज पढ़नी है सबसे पहले। नंबर 2 कुरान की तिलावत करनी है, करेंगे इंशाअल्लाह। और नंबर 3 अल्लाह ने मुझे और आपको किसका उम्मती बनाया? मुझे बोलो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। मेरा तुम्हारा ईमान है हमारा नबी सारे कायनात, हमारा नबी सारे नबियों से आला, बोलो हमारा नबी सारे नबियों से आला, हमारा नबी सारे नबियों का सरदार। इस उम्मत को अल्लाह ने सारे नबियों की उम्मतों का सरदार बनाया है, इसलिए हमें सबसे पहले नबी की सुन्नतों पे अमल करना है, करेंगे इंशाअल्लाह। लिबास, चेहरा, जितनी चीजें सुन्नत में आती है वो हमें अपनी जिंदगी में उतारना है इंशाल्लाह। फिर मरेंगे इंशाल्लाह हमारा नबी हमारा इंतजार करेगा, अपने साथ जन्नत में ले जाएगा और कल कोई साथ ना देगा। अगर हम जन्नत में जाएंगे मेरे नबी की, मेरे तुम्हारे नबी की शफाअत पर जाएंगे। फिजाओं में बसी खुशबू, सुबह पर किसका नाम आया, वही हजरत मोहम्मद जिसका अर्श से सलाम आया। यकीनन बख्श देगा रब्बे आलम मुझे आसी को, अगर वो कह दे कि ये मेरा गुलाम आया। हमें उनका गुलाम बन के मरना है, मरेंगे इंशाअल्लाह। अस्सला अस्सला वमा मलकत ऐमानुकुम, आखिरी मौके पर कहा था, आखिरी बात नमाज न छोड़ना। मेरी उम्मत अपने माँ बापों के साथ अच्छा सलूक करना। किसी भी फिरके से किसी भी मजहब से हमारा ताल्लुक हो, लेना देना हो, हम सबके साथ हम अपने नबी के अखलाक बताएंगे। इस्लाम लोहे की तलवार से नहीं फैला है, इस्लाम अखलाक की तलवार से फैला है। हम अपने अखलाक दिखाएंगे, हमें किसी के साथ उलझना नहीं है, सबके साथ किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला हो, सबके साथ प्यार मोहब्बत से रहना है। अल्लाह का सुनी बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी हाँ, हमारे कारी साहब पढ़ेंगे कुछ, कारी साहब कुछ सुनाएंगे? हमने तो सुना दिया, हम तो बहुत थके हुए, कारी साहब क्या बताया आपको। अब तो अभी खाना भी बाकी है, सब खाना का
السلام علیکم ہمارے محسن اعظم کے حکم سے حاضر ہوا ارادہ بس ان کے دیدار کا تھا اللہ ان کی حاضری کو ہماری حاضری کو قبول فرمائے اس مسجد کو اپنی شان نشان نمازیوں سے مصلیوں سے قرآن کی تلاوت کرنے والوں سے مومنوں سے آباد فرمائے صرف 2-3 مصرے سماعت کر لیں انشاءاللہ تعالی ہماری مدینے کی حاضری کی طلب اس مصرے میں ظاہر ہو ہمارے گناہوں کی ندامت اس میں ظاہر ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا ہمیں حقدار تو شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ وسلم اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں اس کرم کی بدولت بڑا ہوں اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں اس کرم کی بدولت بڑا ہوں اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں اس کرم کی بدولت بڑا ہوں ان کے ٹکڑوں سے راز پا کر ان کے ٹکڑوں سے راز پا کر تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں اس کرم کی بدولت بڑا ہوں اب میرے اور آپ کی نکمّی کا یہ شعر ہم کتنے نکمّے ہیں اور آقا نکمّوں کے ساتھ کیا سلوک فرمائیں گے شاعر اس کو بیان کرتے ہیں اس کرم کو مگر کیا کہو گے میرے ماں سب سے برا ہوں اس کرم کو مگر کیا کہو گے اس کرم کو مگر کیا کہو گے میرے ماں سب سے برا ہوں جو سمیٹے ہوئے ہیں جو سمیٹے ہوئے ہیں ان کے قدموں میں بھی پڑا ہوں اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں اس کرم کی بدولت بڑا ہوں مدینے والے شاہکار کو ہم ہمارا دکھ سناتے ہیں ہماری دکھی دلوں کی آواز کو سن لے تو اللہ کا فضل ہو جائے آخری شعر سماعت کریں پیارے آقا اپنے غم کی کہانی سنوں کا اپنی زبانی پیارے آقا اپنے غم کی کہانی
اللهم لك الحمد حمدا حمدا دائما كما انت اهله وصل على محمد كما انت اهله لنا وارحمنا لنكون من الخاسرين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا واسعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وشفاء من كل داء مولاي کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ پاپی ہے مجرم ہے رات کے اندھیریوں میں دین کے اجالوں میں گناہ کو گناہ جان کر گناہ کیے ہیں یا اللہ اپنے فضل سے معافی عطا فرما ہاتھوں پہ ظلم زبان پہ گالی ذہنوں میں بدمعاشی نیتوں میں فساد پیٹ میں لقمے حرام کے جا رہے پاؤں غلط سن چل رہے پورا وجود گناہوں میں گزرا ہوا ہے یا اللہ تو نے بنی اسرائیل کے 100 آدمیوں کے قاتل کو بھی معاف کر دیا تھا تو تیرے حبیب کی امتی ہے بندے ہیں لیکن تیرے ہی بندے ہیں یہ ماتھا یہ پیشانی تیرا علاوہ کل نہیں جھکتی تجھے تیری وحدانیت کا واسطہ اللہ ہم سب کو معافی عطا فرما یا اللہ اس مجمع میں کسی کی ماں تیرے پاس ہوگی کسی کا باپ تیرے پاس ہوگا کسی کا بھائی تیرے پاس ہوگا کسی کی ہمشیرہ تیرے پاس ہوگی اللہ کسی کی گھر والی تیرے پاس ہوگی کسی کی اولاد تیرے پاس ہوگی اللہ جن کے جتنے رشتہ دار انتقال کر گئے تیرے اس نورانی گھر کی برکت سے سارے مرحومین کو اللہ جنت الفردوس میں اعلی مقام نصیب فرما ہم جانتے ہیں اس سنت سے اس رسم سے ہمیں بھی گزرنا ہے ایک دن ایسا آئے گا اللہ ہمیں بھی لوگ اپنا دیں گے ایک وقت ایسا آئے گا لوگ کہیں گے فلانا چلا گئے فلانے ہم ہوں گے ہمارے نام کا بھی اعلان ہوگا ہمارے نام کا بھی کفن خریدا جائے گا سجدوں کے اعظم میں لوگ کافور ملیں گے پیار سے چہرہ دیکھ آئیں گے فلانا میت پہ لیٹا ہے آخری دیدار کر لو اللہ لوگ کاندھوں پہ اٹھا کے قبرستان لے جائیں گے پیمر میں کھاد کر دیں گے تیرے فرشتے آ کر پوچھیں گے پتا تیرا رب کون ہے تیرا نبی کون ہے تیرا دین کیا تھا اللہ وہ وقت آئے ہم سب کو تیری مرضیات والے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما ہمارے دامن میں کوئی عمل نہیں ہے جس سے جنت مانگ سکے بے شک جنت دے گا تو اپنے کرم سے دے گا یا اللہ جنت والے اعمال کرنے کی ہمیں ہماری اولاد کو ہماری نسل کو یا اللہ توفیق عطا فرما نمازی بنا دے سچا پکا نمازی بنا دے یا اللہ تلاوت قرآن کا شوق اور جذبہ عطا فرما
या अल्लाह रमजान मुबारक का महीना करीब आ रहा है, माह सियाम में दाखिल हो रहे हैं। या अल्लाह लम्हे लम्हे की कदरदानी की तौफीक अता फरमा, तज़ीय वक्त से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा। तिलावत करना, तिलावत सुनना, दोनों वजीफों को हम सबको पाबंद बना। या अल्लाह कुरान का नूर हमारे घरों में नाज़िल फरमा, कुरान की रोशनी हमारे सीनों में उतार दे। या अल्लाह कुरान पढ़कर समझकर अमल करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारा कुरान से रिश्ता टूट चुका है। या अल्लाह हमें कुरान तब याद आता है जब घर में दादा की मैयत पड़ी हो। या अल्लाह कुरान तब याद आता है जब घर में माँ की मैयत पड़ी हो। अपने कुरान को मुर्दों के लिए बना के रखा है। जब घर से जनाजा निकलता है हमें सूरह यासीन की बेटी याद आती है। अल्लाह खुद कुरान का शिकवा है, आंखों में सजाया जाता हूँ, आंखों से लगाया जाता हूँ, तावीज़ बनाया जाता हूँ, दो दो के पिलाया जाता हूँ, जुस्तान हरीर और रेशम के और फूल सितारे चांदी के, फिर फिक्र की बारिश होती है, खुशबू में बसाया जाता हूँ। जब कौल कसम लेने के लिए तकरार की नौबत आती है, फिर मेरी जरूरत पड़ती है, हाथों में उठाया जाता हूँ। अल्लाह अल्लाह कुरान से हमारा रिश्ता जोड़ दे। मेरा नबी रमजान में कसरत से कुरान पढ़ा करता था। या अल्लाह हमें रमजान में कसरत से कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह तेरे बहुत नूरानी घर में हम सब बैठे हुए हैं। या अल्लाह सब ने कशकोल फैलाया है, अल्लाह सब ने दामन फैलाया है। कौन किस लाइन का भूखा है, कौन किस लाइन का प्यासा है, तो अच्छी तरह जानता है। कोई मुकद्दमे से परेशान है, अल्लाह कोई अपने केस से परेशान है, अल्लाह कोई अपनी औलाद से परेशान है, कोई अपने तिजारत से परेशान है। अल्लाह किसी की मकान की तामीर चल रही है, किसी का मकान बन रहा है। या अल्लाह कौन जो जिस लाइन से परेशान है, जो जिस लाइन से अपनी हाजात लेकर बैठा है, ज्योति फैला कर बैठा है, या अल्लाह सबकी हाजात को पूरा फरमा, सबकी परेशानियों को दूर फरमा। जो किसी मजबूरी के तहत नहीं आ सके हैं, या अल्लाह सब पर अपना करम शामिल हाल फरमा। या अल्लाह हम जानते हैं तू मांगने वालों से बड़ा खुश होता है, दुनिया वालों से मांगो वो भी बांटते हैं, तेरे से ना मांगा जाए तो नाराज हो जाता है। अल्लाह ना मांगे तुझसे, ना मांगे तो किससे मांगे। दुनिया वाला देकर शादियों के बीच जलील करता है। अल्लाह तू कहता है देने मांगने वाले खत्म हो सकते हैं, देने वाला कभी खत्म नहीं हो सकता। झोली हमारी तंग हो सकती है, तेरे खजाने कभी खत्म नहीं हो सकते। मछली के पेट में यूनुस को तू नहीं तो बचाया था, तेरे कुएं से यूसुफ को तू नहीं तो निकाला था। मेरा नबी यतीम था, इमामुल अंबिया को नहीं तो बनाया था। अल्लाह आतिश नमरूद में दहकती हुई आग जो आसमान से बातें करती थी, आतिश नमरूद ने खलील इब्राहिम को तो नहीं तो बचाया था। छुरी के नीचे इस्माइल को तो नहीं तो बचाया था। अल्लाह तो नहीं तो बचाया था। अल्लाह कश्ती पार करा के नूह अलैहिस्सलाम को तो नहीं तो बचाया था। फिरौन के जुल्म से मूसा को तो नहीं तो बचाया था। अल्लाह या अल्लाह हमारे सामने ये सारी कहानियां हैं, हम पूरे विजदान के साथ कहते हैं, पूरे एतमाद और यकीन के साथ कहते हैं, तू वही खुदा पूरी ताकत के साथ मौजूद है जिसने यूसुफ को अंधेरे कुएं से बचाया था। आज तू वो खुदा पूरी ताकत के साथ मौजूद है जिसने बदर में फरिश्ते उतारे थे। मुनाफिकीन ने कहा था किस कौम से लड़ने जा रहे हो, कील कांटों से लैस होके आई है, कुचल जाओगे, मसल जाओगे। मेरा नबी काली कमली ओढ़े आगे आगे चल रहा था। एक मुसलमान सिपाही ने इशारा करके कहा था न तेरे को तीर पे तकिया न खंजर पर न भाले पर, न तेरे को तीर पे तकिया न खंजर पर न भाले पर, भरोसा है तो इस सादी सी काली कमली वाले पर। 1000 का लश्कर तूने आसमान से उतारा था, आज मदद क्यों नहीं आती? आंखें आवारा हो, आज मदद क्यों नहीं आती? कान गाने सुनते हैं, पेट में लुक़्मे हराम के जाते हैं, आधी रात तक नौजवान नचनियों के नाच देखते हैं, इंस्टाग्राम पे अजनबी लड़कियों से चैटिंग करते हैं, शादियों में खुराफात चलती है, ऐसी शादी शैतान शर्माए, पूरी शादी बेशक बनी हुई है। हमारी ऑटो रिक्शा में गाड़ियों में गाने बजते हैं,
फिर मदद कहाँ से आएगी? तो वही खुदा है जिसने बदल में फरिश्ते उतारे थे। आज मुसलमान कितने परेशान है, तो तेरे अलावा किसी को नहीं बुलाते हैं, तेरे अलावा किसी को नहीं पुकारते हैं। तू चाहे तो पूरी कायनात को एक ही झटके में खत्म कर सकता है। कोरोना में तू नहीं तो कायनात को झंझोड़ा था। बाप बेटे के पास जाने से डरता था, बेटी माँ के पास जाने से डरती थी। लाखों लोग मर गए, तूने मार दिए, अपने पास बुला लिए। अल्लाह तू चाहे तो एक हल्के से वायरस से पूरी कायनात को खत्म कर सकता है। अल्लाह हमारा ईमान तेरी साथ पे है, तू सबसे बड़ा है, तुझसे बड़ा कोई नहीं। और सब फना हो जाएंगे, सिर्फ तेरी जात बाकी रहेगी। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम। अल्लाह हमें तेरी वहदानियत समझा दे, तेरा खौफ नसीब फरमा, तेरा डर नसीब फरमा, तेरी मारिफत नसीब फरमा। आज का नौजवान माँ बाप से छुप के गुनाह करता है, मेरा अब्बू देख लेगा, मेरी अम्मा देख लेंगी। कितने नौजवान रोजा नहीं रखते, और अगर कोई देख ले तो वो छुपाते हैं कि कोई ताना मारेगा, अड्डा रोजा नहीं रखता। अल्लाह हमारे इस भाई को इतनी अकल नहीं है, वो खुदा देखता है, जो काली पहाड़ी पर चलने वाली काली चुकी की लकीर को भी देखता है। या अल्लाह हमें अमाल से जोड़ दे, सही अमाल करने की तौफीक अता फरमा, रोजे रखने की हिदायत अता फरमा, ताकत कुव्वत अता फरमा। या अल्लाह नमाजों की मुआज़बत करने वाला बना, मस्जिदों से जोड़ दे, उलमा से जोड़ दे, मस्जिदों से वाबस्तगी इख्तियार फरमा, एतिकाफ में अपना वक्त निकाल कर बैठने की सआदत नसीब फरमा। या अल्लाह इस मस्जिद में खुसूसी रहमतों बरकतों का नुज़ूल फरमा। मस्जिद का निजाम या अल्लाह तेरे इशारों से चलता है, तेरे कर्म से चलता है। दुनिया में एक नहीं, दो नहीं, लाखों करोड़ों मसाजिद मौजूद है। या अल्लाह वो सारे तेरे घर है। कयामत का फितना आएगा, तू इन सजदा गाहों को उठा लेगा। या अल्लाह ये हमारे पास तेरी एक अमानत है, अल्लाह हमें खयानत करने से बचा, मस्जिद में तामुन रखने वाला बना। अल्लाह मस्जिद की एड़ी चोटी का जोर लगाकर अपनी हलाल कमाई लगाने वाला बना। हम जानते हैं ये कमाई का जमाना है, आखिरत कटाई का जमाना है। तेरे घर में दिया होगा रुपये का एक सिक्का, अल्लाह हमें इस बात का एहसास नहीं है तो इसका कितना बड़ा कर देगा। 700 गुना 70 गुना ये तो बतौर मिसाल है, खजाने में क्या कमी है। अल्लाह हमें मस्जिदों में अपना हलाल पैसा लगाने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह इस मस्जिद में जितना काम बाकी है या अल्लाह रुकावटों को दूर फरमा, असबाब मुयस्सर फरमा। या अल्लाह जल्द अज जल्द या अल्लाह तेरे इस खूबसूरत घर को या अल्लाह तामीर से या अल्लाह इख्तिताम तक पहुंचा। यहाँ जितने लोग बैठे अपना वक्त फारिग करके, या अल्लाह ये बहुत सख्त धूप है, अपना खाना कुर्बान करके, अपनी तिजारत कुर्बान करके, अपने बीवी बच्चों को छोड़कर तेरे प्यार में, तेरे नबी की मोहब्बत में, तेरे घर की मोहब्बत में कितने सारे लोग आके बैठे हैं, पूरी मस्जिद भरी हुई है। या अल्लाह इनकी हाजिरी मंजूर फरमा, या अल्लाह इनकी खाली झोली को भर दे। या अल्लाह इनके आंसुओं की लाज रख ले। इस मजमे में जो बीमार है शिफा अता फरमा, जो बेरोजगार है हलाल तकलीफ रोजी अता फरमा। या अल्लाह जो जिस लाइन से परेशान है इसकी परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह जिन हजरात ने मुझे मदऊ किया, या अल्लाह अकीदत में मोहब्बत में बुलाया, या अल्लाह इनकी मोहब्बतों को कबूल फरमा। हमारे अल्ताफ भाई और दीगर मस्जिद के जो ट्रस्ट हजरात मुतवल्ली हजरात है, या अल्लाह या इस मस्जिद को कामयाब, या अल्लाह इस मस्जिद की तामीर में जिन्होंने जिस लाइन का पैसा लगाया है, मेहनतें की है, ईंटों की ईंट चढ़ाई है, या अल्लाह चिराग से चिराग जलाए हैं, या अल्लाह तमाम मुआविनीन, मुहसिनीन, खिदमतगुजार, मुंतजिमीन, दामे बीरामे कदर में सुखाने जितना हिस्सा जिसने लगाया, या अल्लाह अपने खजाने गैब से तमाम मुहसिनीन मुआविनीन को बेहतरीन बदला अता फरमा। हमने मांगा हमारे गुमान के मुताबिक, तू दे तेरी शान के मुताबिक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि। भाई हम सभी
साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं और अपने जिम्मेदारों का भी शुक्रिया अदा करते हैं और उन साथियों का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हर तरह से ताउन किया। और सभी आने वाले मेहमानों से गुजारिश है कि यहाँ पर जवानों की तरफ से ठंडे का इंतजाम किया गया है, वो ठंडा पी कर जाए और सहरी और इफ्तारी का टाइम टेबल देखने के लिए रमजान मुबारक का कार्ड भी लेकर जाए। नहीं तो मरो